Okay, class. So in the previous class, we covered about the mitosis, the process of cell division, mitosis, one of the cell division process, that is mitosis. And in today's class, we are going to understand what is meiosis. आज की क्लास में हम meiosis process पढ़ने वाले हैं. Now, before that, let me tell you this first. Human cells may either be, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है? The one is diploid. Just a second, guys. Okay, so human body has two types of cells, either diploid और haploid. अभी समझिएगा, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक यू नो लीवर की बात कर लीजिए या फिर ब्रेन की बात कर लीजिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स. वी कॉल देम ईदर सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स. And the other one is haploid. I will tell you what do you mean by that. Haploid, the next other one is gamete or sex cells. What does it mean? Basically, you know that when the reproduction के लिए, जो newborn baby की production के लिए, you need, okay, you need the sperm and the ovum. Okay, the sperm, or the for males it is sperm, and for females it is eggs, right? We have already learned this in last class. So the sperm and the eggs don't feel okay. So here this is haploid. Now होता क्या है कि जब diploid होता है, when we say diploid, okay, when we say diploid, we mean 2n, and that is we mean 46 chromosome. 46 chromosome. Now we all are aware completely that we get 23 pairs of 23 chromosome from father side and 23 from mother side. So each cell in our body has 23 pairs of chromosomes. Okay, each cell in our body has 23 pairs of chromosome, मतलब 46 chromosome. पेयर में बोलेंगे तो 46, और अगर सिंगल बोलेंगे तो सॉरी पेयर में बोलेंगे तो 23 और सिंगल बोलेंगे तो 46. नाउ हैप्लॉइड क्या होता है? इसी का ही सपोज कर लीजिए, इसी को ही अगर हम डिवाइड करके पेयर के फॉर्म में लिख दें, दैट इज हैप्लॉइड, एंड दैट इज 23. सो हैप्लॉइड क्या हुआ? 23 क्रोमोसोम. अगर उसको हम पेयर में लिख देंगे, दैट विल बी हैप्लॉइड. मतलब समझिएगा, we will understand this is the reduction of the chromosomes here, and we'll understand this completely अच्छे से कि कैसे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? Now we have already understood mitosis. कि mitosis का क्या होता है कि when we like you know जैसे माइटोसिस प्रॉब्लम, जैसे हम वुंड हीलिंग होती है, वुंड्स होते हैं, उसका हीलिंग हो गया. समवन हैज अनम्यूटेड और व्हाट? ओके, वुंड हीलिंग हो गया, कोई बॉडी रिपेयरिंग हो गया, लाइक द न्यू सेल्स फॉर्मेशन हो गया, दैट इज ऑल डन बाय द सोमैटिक सेल्स. ओके, द माइटोसिस प्रोसेस. नाउ इट्स सिंपल. व्हेन वी टॉक अबाउट, okay, when we talk about gametes formation, how are gametes formed, how are the eggs formed, मतलब कि basically जो newborn reproduction हो रहा है तो उसके cells कहाँ से आएंगे? Okay, how those cell occur, कहाँ कैसे form होते हैं, how those cell form. And let me hear from some of you if you have any idea about it. Okay, just remember wound healing, body repairing, और आपका जो हमने कल पढ़ा था कि इमेसिएटेड बॉडी की जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है, ऑल ऑफ दैट इज डन बाय द माइटोसिस प्रोसेस. देन व्हाट हेल्प्स इन गेटिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन? So let's hear from some of you if you have any idea about it, and then we'll go ahead and understand it completely. Yes, guys. Anyone? Okay. No responses? That's okay. Let's take 10 seconds. How are gametes formed? Okay, we'll go ahead and understand this completely. Okay, so पहले समझते हैं. सो दूसरी, जब हमें पता कि बॉडी में अगर कि इमेसिएटेड बॉडी होगी, कोई थिन होगा, कोई वीक होगा, तो अगर उसको थोड़ा सा मस्कुलर होना है तो वहां पर सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स शुड बी इंक्रीज्ड. वी नो द व्हेन द इंजरी होती है, वुंड होता है, तो उसका वुंड हीलिंग जो है, वुंड सीलिंग जो है, वो भी किसके थ्रू होगा? अगेन नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्मेशन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड.
Again, so all of that is done by the mitosis process. So for the gamete formation, for the reproduction cells, there should be another process. There should be another process. And as Ajit said, gametes are formed through the meiosis process. Okay, there should be another process, and that is called meiosis process. That is called simply meiosis process. And meiosis process is simply मेकिंग सेक्स सेल्स, मतलब कि रिप्रोडक्शन सेल्स, जिसमें से आपका न्यू बॉर्न जो बेबी है वो आएगा, रिप्रोडक्शन सेल कहलाएगा। चाहे वो फ्रॉग का रिप्रोडक्शन हो, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होगा जहां पर न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, एंड दैट विल गिव द बर्थ टू द बेबी। ओके, नाउ so this process is called nothing but the meiosis. This process is called nothing but meiosis. Now let's understand this completely. Okay, now meiosis. Okay, so meiosis is a Greek word. I can write it here and you can take screenshots. Okay. Meiosis is a Greek word which means lessening, which means lessening. Okay. और less. और मियोस मतलब होता है, जो मियोस होता है, मियो, इसका मतलब होता है लेस. व्हाट डज इट मीन दैट? कि मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम है, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, पेयर्स के फॉर्म में आ जाएंगे, पेयर्स के फॉर्म में. तो यहां पर रिडक्शन इन द क्रोमोसोम हो जाएगा. वी विल कॉल इट रिडक्शन इन द क्रोमोसोम, एंड बिकॉज ऑफ दैट लेसनिंग. माइटोसिस में क्या हुआ था ना, वहां पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे, सो इंक्रीज हुआ. ओके, माइटोसिस मतलब इंक्रीज होना, और मियोसिस मतलब रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ मियोसिस जनरेट्स, इसका काम क्या है? मियोसिस का काम क्या है? मियोसिस जनरेट्स, आई कैन राइट इट हियर एज वेल. Okay, so you can see that as well. So meiosis generates sex cells. Okay, this generates sex cells, comma, eggs in females, and sperm in male. Okay, and sperm in males. So similarly, काम क्या है meiosis का? सो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारा माइटोसिस होता था वो सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में ऑकर होता है, एंड मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स. वी लर्न दिस अर्लियर इन द फर्स्ट क्लास ऑफ सेल डिवीजन दैट मियोसिस, दिस प्रोसेस ऑकर इन जर्म सेल्स. हमने याद है, सभी को याद है, हमने पढ़ा था जर्म सेल्स में होता है. अभी जर्म सेल्स क्या होते हैं? What are the germ cells here? What do you mean by germ cells here? क्या होता है जर्म्स? तो याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं. पहला है रिप्रोडक्शन सेल्स बनाना, ठीक है, सॉरी, सेक्स सेल्स बनाना, इन्हीं को बोलते हैं रिप्रोडक्शन सेल्स भी बोलते हैं. आई विल राइट दैट हियर एज वेल. रिप्रोडक्शन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओके, रिप्रोडक्टिव सेल्स पहला काम हो गया. दूसरा है सेक्स सेल्स, एंड थर्ड है जो आपका जर्म सेल्स. नाउ जर्म सेल्स क्या होता है? जर्म सेल्स का मतलब है जर्मिनेट. जर्म मतलब है जर्मिनेट होना, जर्मिनेट. और जर्मिनेट मतलब क्या होता है? आपको सिंपल सा जर्मिनेशन का मतलब पता होगा. जर्मिनेट का मतलब पता होगा कि समथिंग न्यू इज फॉर्मिंग. जैसे कोई आप चने, स्प्राउट्स होता है ना, स्प्राउट जर्मिनेशन होता है, राइट? वहां पे नया, उसमें थोड़ा सा अंकुरित होता है, राइट? तो अंकुरित होना, बेसिकली जर्मिनेशन होना. न्यू baby, like let's call it just baby only. So gamete का बनना, न्यू जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है. तो जैसे ही यहाँ पर की स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो वहां पर जर्मिनेशन होता है, तो न्यू काइंड ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, एंड दैट इज व्हाट जर्म सेल इज, जहां पर जर्मिनेशन होगा. नाउ होता कैसे, बेसिक समझ लेते हैं पहले मियोसिस का. क्या होता है? यहाँ पर एक पेरेंटल सेल होगा. क्या होगा? पहले पेरेंटल सेल होगा. अभी मैं इसको और अच्छे समझाएंगे. पेरेंटल सेल होगा. इसमें होता क्या है? पेरेंटल सेल, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ, मतलब डॉटर सेल 1 एंड डॉटर सेल 2. दिस वाज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस में यहां तक सेम था, बट यहां पर मियोसिस में क्या होता है? फर्दर इट डिवाइड्स into 2 more daughter cell each for them, like that is four cells are formed at the end. 4 cells are formed
at the end and we call them hypoid cells. Hypoid, तो ये कहेंगे ये पहला ये 2n फॉर्म में 2n बने, यहाँ पर ये 4n में कन्वर्ट हो गए, याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोइड सेल्स बन रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड meiosis. This process is called meiosis, and where this first step takes place, this is called, okay, I will not write it here, I will write it in the next. So quickly let me know if you are getting what we are learning here. If you're getting understanding somewhat of it, then we go ahead, okay, or I'll repeat something again, and or we go ahead. Quickly let me know guys in the chat box. भैया, yes Ajit, भैया जर्मिनेशन का मीनिंग वापस से बताओ। सिंपली जर्मिनेशन मतलब होता है नया जो, अच्छा ओके, सो कोई भी चीज ग्रो करे, ओके, कोई भी चीज ग्रो करे, सीड होता है ना, सीड को अगर आप पानी में रख दो तो वो ग्रो करता है, राइट, दैट्स व्हाट जर्मिनेशन मींस, ओके, कोई भी चीज ग्रो करे, बिगिन टू ग्रो, ओके, दैट्स व्हाट जर्मिनेशन मींस, कोई भी नई चीज उसमें उससे ही नया चीज बनकर आ जाए, दैट्स व्हाट जर्मिनेशन मींस, यू गेट दैट? यस, ओके, नाउ so are we clear with this? Can we go ahead? Are we good to go ahead? समझ में आया थोड़ा सा? यस, I'm hoping like more people will respond in the chat box. Either you can come off mute and like say, or like you just respond in the chat box, whatever, however you are comfortable with. Okay, now let's go ahead. Can you all have a look at this picture here? Okay, I have already written, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा समझने में, but have a look at this picture, okay? Or I can rub this and write it somewhere else, so you might can see this properly. Okay, now I hope you all can see this clearly. So have a look at this picture and just observe, okay? Look and observe how similar or different the children are from the parents, okay? How similar or different these children are from the parents. Yes, can you all see? And compare yourself with your siblings. आप अपने खुद को अपने भाइयों बहनों से थोड़ा कंपेयर करके देखो. Do you have similarities or are you like the same, identical to your brother and sister? से identical मतलब same to same. क्या आप same to same है या फिर कुछ similarity आप सभी में, कुछ differences भी आप सभी में है? Let's take 10 seconds to think about this. This picture is from a famous cartoon, Simpson. Okay, Simpson cartoon. You might have watched it or you might not have watched it. That's fine, completely okay. We just need to have a visualization and idea of here. Okay. So can we all recall now? So what I'm trying to say here is that here you can see these, all of them have one similarity, like their eyes bulging out, okay, the bulging eyes, सबकी eyes almost similar है, right? Skin का color similar है, hairs का design, face का design similar है, like the face is same, right? The face sculpture is same. So this is the similarity, but they are not identical. मतलब सेम टू सेम नहीं है, हूबहू नहीं है, थोड़े से सिमिलरिटी है, थोड़े से डिफरेंसेस है, एंड दैट इज द रीजन हम जो अपने भाइयों बहनों से हम थोड़े आइडेंटिकल होते हैं. वी आर डिफरेंट, राइट? वी आर डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा सिमिलरिटी भी होती है, बट वी ऑल हैव द सिमिलरिटी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, लाइक द फादर एंड द मदर. सो यू गॉट दैट. माइटोसिस का काम क्या था? माइटोसिस सेल डिवीजन काम था कि बॉडी को मतलब कि वहां पर वुंड हीलिंग करना, मतलब कि नए सेल्स जनरेट करना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करना. लेकिन मियोसिस का काम क्या है? मियोसिस का काम क्या है? जर्मिनेशन, नया सेल बनाना, न्यू रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, like new birth will come, okay, new birth will take place. So that's what meiosis is. So I hope अब आपको थोड़ा थोड़ा और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, and as we go ahead, trust me, at the end of the class you will have a clear, perfect clear understanding of this, okay, what is meiosis and what is mitosis. And now we go ahead, okay. So I had written the definition here, but you can read it when I share the PPT, okay. Now have a look at this picture here again, like just one more time, okay. Have a look at this picture here. You can see a father here and the son, this is the son, and the mother, his mother, and the father, okay. Again, what similarity do we see here? यहाँ पर देख सकते हैं कि eyes and ears are same as father. This
boys sons eyes and ears are same as father, but the hair color is same as mother. Height is almost similar, height भी काफी same तक है. So we see the similarities here, right? We see the similarities here, right? And this process, and we are going to understand this process completely, and that is called meiosis. ठीक है, अब आते हैं कैसे होता है meiosis process में होता क्या है. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नए बर्थ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो जो नया बर्थ होता है, this is all done with the help of meiosis process. That is all done with the help of meiosis. And now we will understand what this process exactly is and how many stages are there. Okay, so पहला स्टेज क्या होता है, पहले इसमें पेरेंटल सेल आता है, meiosis में पेरेंटल सेल होता है, ये रिप्लिकेट करता है, ठीक है. And then this and then two daughter cells come, then two daughter cells are formed, and this alone is called meiosis 1. So ये थोड़ा सा अलग होगा, माइटोसिस की तरह सेम टू सेम नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है, सिमिलरिटी है बट थोड़ा सा अलग है. एंड जहां पर फिर दो डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनेंगे, एंड वी कॉल इट meiosis 2. वी कॉल इट अ साइटोकिन्स 2. ओके, साइटोकिनेसिस 2, meiosis 2 बोलते हैं हम इसे, ठीक है. नाउ तो क्या होता है, मियोसिस से स्टार्ट होता है डिप्लॉइड पेरेंट सेल से. सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस किससे स्टार्ट होता है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल से. पेरेंट सेल से सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है. अब क्या होता है, पेरेंट सेल जाता है डीएनए के रिप्लिकेशन में, रिप्लिकेशन होता है वहां पर, ठीक है. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी. न्यूक्लियर डिवीजन होता है वहां पर, न्यूक्लियस सेपरेट होता है, एंड ऐसी तरीके से लास्ट में जो प्रोसेस होती है 4 डॉटर सेल बन के आती है. ये मैंने ओवरव्यू लिख दिया है, ये अभी प्रोसेस समझाना नहीं है, ठीक है. दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ इट. ओके, नाउ एंड ह्यूमंस दीज हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एक्स एंड स्पर्म. जो हमने बात की ना 4 डॉटर सेल्स बनते तो वो है कहलाता क्या, एक्स एंड स्पर्म. एंड द meiosis process is also called reduction division. reduction division क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 डॉटर सेल से 4 में हो रहा है, और मतलब कि मतलब क्रोमोसोम के नंबर्स कम हो रहे हैं. यहाँ पर देख सकते हो क्रोमोसोम पेयर्स में थे, अब यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल पेयर्स में आ गए, राइट. सिंगल सिंगल क्रोमोसोम हो गए. दैट इज व्हाई रिडक्शन इट इज कॉल्ड. now this is the time that we go quite into deep in this process now. okay, अब हम थोड़ा सा चलिए डीप पे चलते हैं, समझते हैं बिल्कुल एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, ठीक है. चलिए, द वेरी फर्स्ट वन कम हियर इज, ओके, द वेरी फर्स्ट वन कम इज meiosis completed through 2 stages. meiosis 2 स्टेजेस में होता है, एंड दोज स्टेज meiosis 1 एंड meiosis 2. हेट्रोटाइपिक, होमोटाइपिक, ये नहीं जानना है हमें, ठीक है, बट हमें ये समझना है कि meiosis 1 एंड meiosis 2. आप समझिएगा क्या होता है. ये हुआ हमारा पेरेंटल सेल हुआ, समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंटल सेल हुआ. अच्छा, बिफोर दिस ओनली आई विल टेक यू टू अनदर स्लाइड एंड देन विल कम बैक टू दिस. ओके, सो समझिए, यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये होता है पहला meiosis 1 है. दिस इज नथिंग बट द meiosis 1. यू कैन सी इट हियर, दिस इज नथिंग बट द meiosis 1. प्रोफेज, वहां पर भी माइटोसिस में भी प्रोफेज था, तो प्रोफेज 1 बोलेंगे इसे. मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, and this is one meiosis, the meiosis 1. Now this meiosis goes to, now this meiosis process goes to what, अब ये meiosis process के बाद हमारा क्या चालू हो जाएगा, meiosis 2, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, and last में meiosis process 2 ends here, and we get finally, what do we get finally, we get 4 daughter cells at the end of the process. At the end of the process we get the 4 daughter cells. Are we clear? अभी मैं इनको एक एक स्टेप समझाएंगे, बट आर वी क्लियर अभी कैसे meiosis में कितने स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप होंगे. जैसे वहां पर पहले कल के में क्या होता, कायरोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस हुआ था, यहाँ पर meiosis 1 और meiosis 2 होगा. meiosis 1 के 4 स्टेप्स रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. सिमिलरली फॉर meiosis 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2. आर वी क्लियर टिल हियर? सभी को क्लियर है यहाँ तक? देन वी गो एड वन बाय वन. अब हमें सारी प्रोसेसेस पढ़नी है. क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद दिस टिल हियर. ओके, आकाश इज क्लियर परफेक्टली, थैंक यू आकाश. नाउ लेट्स गो एड, वी कम बैक फर्स्ट. ओके, नाउ वी कम बैक. अब अंदर समझते हैं, देखो चलिए. तो पेरेंटल सेल में क्या होगा, यहाँ पर पेरेंट्स के जीन्स आएंगे और मदर के जीन आएंगे. पेरेंटल इसीलिए कहा फादर के, सॉरी
फादर के जीन्स होंगे और मदर के जीन्स भी होंगे, मतलब क्या हमें मिलेंगे, डीएनए मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर जाता है, रिएक्ट करता है, ये ऐसे इस तरीके से बनाता है, ये भी समझाएंगे एक एक करके, डोंट वरी। ये चलिए मैं समझाता हूँ, बाद में स्टेप पे लेके आते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहले अब हम चलते हैं मियोसिस 1 पे। आई विल राइट इट हियर, मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस, दिस इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, प्रोफेज 1। अब होता क्या समझिए, यहां पर क्या होता है प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 में, कि जो आपका पेरेंटल सेल जो है, जो यहाँ पर का पेरेंटल सेल है, सेम टू सेम रहेगा, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा वैसे ही सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। पेरेंटल फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कंडेंस होकर थिक होगा, राइट, थिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा पेरेंटल सेल ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे और अच्छे समझेंगे। क्रोमोसोम फिर क्या होगा, यहाँ पर होमोलॉगस पेयर में बन जाएगा। आई विल गिव यू द डेफिनेशन व्हाट इज होमोलॉगस। फिर क्रॉस, इसमें नई चीज क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। आई विल एक्सप्लेन यू दिस व्हाट इज इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम आता है, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया ना। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इमेजिन करिए, जो ग्रीन वाला है आपको फादर से मिला है क्रोमोसोम। आपको पता ना ईच सेल में पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं, तो फादर के भी और मदर के भी, एक्स वाई है, याद है, एक्स 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 वाई ऐसे करके। ये सपोज कीजिए आपको मदर की तरफ से क्रोमोसोम मिला है, दिस हैज कम फ्रॉम द मदर साइड, समझिएगा, ठीक है, क्रोमोसोम। नाउ द ग्रीन वन के जो दो पेयर हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, बोथ ग्रीन्स, द बोथ ग्रीन्स, ओके, बोथ ग्रीन्स, दे बोथ आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड, कल हमने पढ़ा। कोई भी डाउट हो तो जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड द रेड वन आल्सो विल बी कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड, इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कब हो जाएगा, जब हम एक रेड और एक ग्रीन ले लें, देन दे विल बिकम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोलेंगे उन्हें, जब हम एक ग्रीन एक रेड ले लें, देन विल कॉल देम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर रहेगा, याद रहेगा सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं होगी। बेसिक, ग्रीन वन द फादर्स क्रोमोसोम जो हमें मिला है वो सेंट्रियोमीर पहले वाले से अटैच्ड है, और जो मदर्स का है वो सेंट्रीमोर सेकेंड से अटैच्ड है, ओके। नाउ टुगेदर, टुगेदर are called homologous chromosome, they together are called homologous chromosome, they together are called homologous chromosome। क्यों बोलते हैं, इनका पता होता है, सेम शेप, सेम साइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेम जीन, सेम जीन के होते हैं, मतलब एक पेरेंट से आए हैं, मतलब सेम जीन के क्रोमोसोम आपके अंदर आए, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम होमोलॉगस, मतलब सिमिलर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर रहेगा, याद रहेगा सभी को, जल्दी से बताइए मुझे, क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस, सेम शेप, सेम साइज, and from the same gene, मतलब parents from the same gene, that means they have come from the parents, एक ही parents है। क्लियर रहेगा guys, please be very attentive, I really need, you know, just to need to hear from some of you whether you are understanding it or not. So I hope, are you clear with the this, okay। now we come to, अब देखो पहले what did I say in the previous slide, I will show you that as well। previous slide में भी हमने क्या कहा, देखो क्रोमोसोम क्या होगा, थिक होगा, कंडेंस हो जाएगा, राइट, क्रोमोसोम पूरे पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब आपको समझ आएगा, लेट्स लुक एट द डायग्राम, द डार्क ब्लू कलर यू सी एंड द लाइट ब्लू कलर यू सी, ओके, द डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू दे आर सिमिलर एंड दीज टू आर सिमिलर, समझ लीजिए, ऐसे दो पेयर्स में आएंगे, ठीक है। अभी जाने दीजिए इसको, डायग्राम को ज्यादा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे समझिए,
क्रोमोसोम होमोलॉगस पेयर्स में आ गए। अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अभी अभी समझाया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, एंड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑकर्स, समझिएगा, एंड क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, समझिएगा इसका मतलब क्या है क्रॉसिंग ओवर। वी कम बैक टू दिस स्लाइड नाउ। देखिए अब क्या होगा, ये जो क्रॉसिंग ओवर आपको दिखेगा यहाँ पर दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर, ये देखिए, वेट आई विल यूज द डिफरेंट कलर। हाँ, यहां पर देखिए ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहां पर देखिए क्रॉसिंग ओवर है, ये दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर, दिस विल हैपन, दिस क्रॉस ओवर विल हैपन, क्रॉस ओवर इसे बोलते हैं हम क्रॉस ओवर, कि इसका जो जीन्स यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है। सिमिलरली हियर व्हाट हैज हैपेंड हियर, they have exchange of DNA between non-sister chromatid, non-sister क्यों बोला है, एक रेड और एक ग्रीन के बीच में, एक रेड एंड एक ग्रीन के बीच में क्या हो गया है, डीएनए का एक्सचेंज हो चुका है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। याद रहेगा गाइस, क्विकली लेट मी नो, याद रहेगा सभी को क्या हो रहा है यहाँ पर, what just has happened, the step, will you be, did you get this step, crossover, perfect, okay, now so now let me just give you the definition, okay, just one time. Meiosis is completed through two stages, I'm summarizing, okay, those two stages are meiosis 1 and meiosis 2, ठीक है। now in meiosis 1, फर्स्ट डीएनए रिप्लिकेट मतलब ग्रीन के दो बना लिए और रेड के दो बना लिए, ठीक है, ग्रीन के दो बना लिए और रेड के दो बना लिए, डीएनए रिप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, देन recombination or crossing over, then recombination or crossing over occur between homologous chromosome, so this process is also called as recombination, और because और इनको जो प्रोडक्ट निकल के है हमारा, वी कॉल देम, ये जो प्रोडक्ट निकल के ना, ये जो प्रोडक्ट निकल, वी कॉल देम recombinant chromosome, recombinant chromosomes, मतलब कि they have come from the recombination process, and result क्या होता है, end result क्या मिला, end result of किससे मिला है हमें, end result of crossing over, end result of crossing over, end result of crossing over, got it. So this is called recombination process, and we get recombinant chromosome, or we call it crossing over, and now this happened between homologous chromosome, and thereafter those homologous chromosome non sister chromatid, मतलब homologous मतलब non sister chromatid रहेगा, याद रखना, non sister chromatid are divided into two groups, and thus, ठीक है, अभी ये हुआ, अभी आई गो अहेड, ओके, अभी क्लियर टिल हियर, यहां से जल्दी से बताइए मुझे, प्रोफेज हमारा खत्म होता है, तो वी कैन गो टू द मेटाफेज 1, क्विकली लेट मी नो इफ यू आर क्लियर टिल हियर, अच्छे समझ में आ गया आपको क्या हुआ यहाँ पर। जैसे हमने वहां पे कल बात किया था कि प्रोफेज में सिर्फ डीएनए बना था, माइटोसिस में मतलब सॉरी क्रोमोसोम फॉर्म हुआ था, राइट, तो यहाँ पर क्रोमोसोम तो फॉर्म हुआ है, बट साथ ही साथ क्या हुआ है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ है, मतलब कि क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर जो आपका डीएनए का एक्सचेंज हुआ है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो आर वी क्लियर टिल हियर, क्विकली लेट मी नो, सो आई कैन सी इफ यू आर गुड टू गो अहेड, guys, can we move ahead? Okay, perfect. Now so the prophase process ends here, prophase process यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। Now we go to the metaphase 1, अब देखो मेटाफेज में क्या होता है, अभी रिकॉल कीजिए, जस्ट रिकॉल, वहां पर माइटोसिस में मेटाफेज में क्या हुआ था, कैन समवन रिकॉल एंड क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और यू कैन कम ऑफ म्यूट एंड से what happens in the metaphase of mitosis,
Anyone? What happens in the metaphase of mitosis? Yes guys, very good Lakshmi. Formation of spindle fibers and what happens, what else happens? और एक और point था वहां पर, if you remember, one more point was there. Formation of spindle तो होता ही होता है, एक और point था, there was just one more point. न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग, वो तो पहले में ही हो गया, प्रोफेज में ही हो गया. न्यूक्लियर स्टार्ट डिसअपियरिंग प्रोफेज में हो गया. आकाश, अभी सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं होगा, अभी नहीं होगा, मेटाफेज में नहीं होता सेंट्रोमियर डिवीजन. एनीवन? एनीवन? ओके, लेट मी Lakshmi Singh, they come in equator. Perfect. Divya Singh, condensed chromosome get arranged in equatorial plane. Perfectly said. Okay. अभी ये पूरा सही आपने कहा है. So what happens here? जो क्रोमोसोम पेयर्स बने हैं रिक्रॉसिंग ओवर के बाद, जो डीएनए एक्सचेंज होने के बाद बने हैं, दे यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पर देखो कलर चेंज हो गया, ये देखो, ये देखिए आप यहाँ पर, राइट. सो द क्रॉसिंग ओवर के बाद जो डीएनए बना है, दे कम इन or they align in equator plane, मतलब सेंटर में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं. ठीक है, ये सेंटर में आ चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर में. एंड स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है? इनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है. हेल्प्स, I will write it here again. Helps in movement of chromosomes. क्रोमोसोम को मूवमेंट में हेल्प करता है. So what is happen? Recombinant chromosome pairs are arranged along the equator or middle of the cell. Okay, सेल के बीच में आ चुके हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बन चुकी है. जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो थ्रेड दिख रहा है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट स्पिंडल फाइबर है. ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर हुआ आपका. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज, सिमिलर टू माइटोसिस. देख सकते हैं, काफी सिमिलर है माइटोसिस से, तो काफी इजी भी लग रहा होगा आपको, राइट? थोड़ा इजी भी लग रहा होगा. परफेक्ट, वेरी गुड राम, आपने सही कहा था, इक्वेटोरियल प्लेन. नेक्स्ट गो गाइस, अभी कौन सा फेज आएगा? मेटाफेज 1 इज डन. नाउ वी कम टू द एनाफेज. मेटाफेज सिमिलर था, एज द वर्ड सेज मिडिल फेज. ओके, तो ये क्लियर रहेगा आपको, मिडिल फेज ही है. ठीक है, now we come to the anaphase. What happens in anaphase? What happens? अपोजिट होता है. यहाँ पर जो, वहां पर जो कॉम्बिनेशन होता है, अब वहां पर इसका क्या होगा? सेपरेशन होगा. homologous chromosome are separated and pulled away by spindle fibers. ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे थे ना, स्पिंडल्स दिख रहे थे, राइट? ये जो फ्लेक्सिबल प्रोटीन बोलते हैं इनको. स्पिंडल प्रोटीन क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल प्रोटीन होते हैं. एंड दे आर जो मतलब कि रेसेदार स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, लेट मी राइट इट हियर फर्स्ट. ओके, तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? इनको सेपरेट करते हैं. और आप देख सकते हो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वाला, ये जो ग्रीन ये जो आपको दिख रहा है ना, वन सेकंड, आई क्विकली चेंज माय कलर. यस भैया. यहाँ पर देख सकते हो, ये जो देख रहे हो, देखो सेपरेट कलर, ये देखो, ये तो कॉम्बिनेशन के बाद का कलर, ये देखिए, राइट? कैन यू ऑल सी दिस? सो नाउ दे आर सेपरेटेड टुवर्ड्स द पोल. पोल की तरफ ये क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है. और कौन कर रहा है उनको सेपरेट? फ्लेक्सिबल स्पिंडल फाइबर इज पुलिंग देम टुवर्ड्स द पोल. तो उनका क्या हुआ? हो गया, सेपरेशन हो गया. क्लियर है यहां तक सभी को? क्विकली लेट मी नो, समझ में आ गया क्या हो रहा है ना? फेज में सेपरेशन स्टार्ट हुआ. अब जब सेपरेशन स्टार्ट होगा, तो यहां पर नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से वापस आएगा. I want if everyone can be थोड़ा सा attentive in the chat box also, or like am I lagging behind in the, like you cannot hear clearly? Okay, perfect. Thank you, Sanya. Thank you, Akash. Okay, so this separation has started. Let me take you back again. Okay, पहले क्या हुआ? अच्छा, सबसे बाद में ही रिवाइज करते हैं. अभी हम सेपरेशन स्टार्ट हुआ.
एंड द लास्ट कम्स इज टेलोफेज, टेलोफेज। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से स्टार्ट हो जाता है अपीयर होना। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वापस से स्टार्ट होता है। और ये दोनों ऑलमोस्ट सेपरेट नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए हैं, यहाँ पर अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, ये अभी सेपरेट होना है। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियाई बिगिन टू रीफॉर्म, प्रिपेयर्स टू ओवरकम टू न्यू सेल्स, टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, टू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज द टेलोफेज, टेलोफेज जो हमने कल ऑलरेडी साइड बेसिकली पढ़ रखी है। आर वी क्लियर विद दिस? Till here it is very similar to mitosis, right? Till here it is very similar to mitosis, and now the new process begins. This was all meiosis 1. This was all meiosis 1. Thank you, Sanya. Sanya is saying clear, so I am assuming that it is clear for everyone else. If not everyone is responding in the chat box, that's fine, but I'm assuming that it is clear for everyone. Okay, now let me summarize it clearly for all of you. Okay, अभी पहले एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा साइटोकिनेसिस भी जाते हैं। अब जब यहाँ पर ये टेलोफेज में आ चुका है, दिस इज टेलोफेज, टेलोफेज 1, अभी क्या होगा, साइटोकिनेसिस होगा। तो वहां पर यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। टेलोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एंड नाउ इट कम्स एज cytokinesis, that is cytoplasm splits into two new cells with 23 chromosome, 46 chromatids each. यहाँ पर देख सकते हो आपको न्यूक्लियर, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेट मी राइट इट हियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस पूरी तरीके से आ चुका है। टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, two new daughter cells are formed and 23 प्रो, इसीलिए रिडक्शन का था ना, 23 क्रोमोसोम किसमें बन गए, 43 में अलग अलग हो गए। अलग अलग मतलब कि ये जो पेयर में थे अभी ये सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, 46 क्रोमैटिड्स में आ चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, और वापस से डीकंडेंसेशन होगा। अब ये क्या होगा वापस यहाँ पे, जो यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाता है, डीकंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ये वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा, डीकंडेंसेशन होगा वापस से, एंड थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, वापस से थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर में, राइट। जो आपका क्रोमोसोम था, अब ये मतलब सेल्स में अलग होने के बाद सेल्स में अलग होने के बाद दे लाइक गो बैक टू द सेम पोजीशन, दैट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड दिस इज हियर द meiosis in one, meiosis first ends here. Okay, the meiosis process completes, meiosis first completes here, meiosis process first completes here, and now we move to meiosis second, and before that we will revise it once. Okay, so meiosis 2 करने के पहले हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एंड बहुत इजीली तरीके से रिवाइज करने वाला हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंगली साउंड में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फेजेस ऑफ meiosis 1। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए चैट बॉक्स में, डोंट हेजिटेट, इट्स योर क्लास, इट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, पहले फेज में क्या हुआ, स्टार्टिंग सेल विद डिप्लॉयड, ठीक है, यहाँ पर होमोलॉगस लगे, दो पेरेंट, दो फादर की तरफ से ब्लू वाले, एंड द रेड वाले क्या हो गए, दो मदर्स की तरफ से आ गए, राइट। ऐसे 4 हमारे पास क्रोमैटिड्स थे, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 4 क्रोमैटिड्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम हुए, पेयर अप हुआ, एक्सचेंज हुआ, उनका क्रॉसिंग ओवर हुआ। यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आई विल राइट इट हियर, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। इस प्रोसेस में प्रोफेज खत्म होते होते क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और बाय द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। तो ये हुआ हमारा प्रोफेज हुआ, प्रोफेज। ओके, मेटाफेज में क्या होता है, दे ऑल, अभी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट क्रॉसिंग ओवर आपको दिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर दिखेंगे। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद दे कम एट द इक्वेटर प्लेन, एट द सेंटर और इक्वेटर प्लेन, बीच में आ जाते हैं पैरेलली। ओके, पैरेलली एट equator plane, they come at the parallelly at equator plane,
ये बीच में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एज एनाफेज, ये जो स्पिंडल थे, ये जो स्पिंडल थे, अब इनको क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। नाउ द स्पिंडल फाइबर विल सेपरेट एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टे टुगेदर, ठीक है। ये वाले अलग अलग होने लगे, ये अलग अलग होने लगे, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये सिस्टर वाले एक जैसे हैं, एक साथ है, लेकिन सेपरेट होने लगे, दे आर ऑल सेपरेटिंग, जैसे यहाँ पे था उनसे सेपरेशन स्टार्ट हो गया। एंड द लास्ट कम्स एज टेलोफेज, टेलोफेज, वहां पर क्या होता है, न्यू फॉर्मिंग सेल्स हैप्लॉइड। तो दो, यहां पर जितने चार थे, यहां पर बेसिकली चार क्रोमैटिड्स थे, क्रोमैटिड मतलब दो क्रोमोसोम पेयर थे, यहां पर कितने हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, देख सकते हो यहां पर जस्ट डबल हो चुके हैं। तो इसलिए कहा कि न्यू हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड का जस्ट डबल क्रोमैटिड बन चुके हैं। तो ईच क्रोमोसोम हैज टू नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। यहां पर दिस इज हाउ सेपरेशन टेक्स। एंड यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappears, nuclear membrane reappears, and here my meiosis process first ends, the here meiosis process first ends here. Okay, quickly let me know if you are perfectly clear with this, or if you have any doubt, please let me know now, and then we go ahead with the meiosis 2. Then we go ahead with the meiosis 2. Quickly let me know in the chat box, guys. Are we clear, perfectly clear with this? Is there any doubt that you want to ask, any questions that you have, any burning thoughts you have, anything you want to ask, you didn't understand, please ask and let me know if you're good to go ahead with the meiosis 2 now. Okay, Ram is saying this process only. Okay, समझ में आ गया Ram? Do I consider that as that? Which one, Ram? Can you let me know quickly? Which phase do you want me to repeat for you? What about others? Is everyone clear with this? Kuch doubt hai, please ask, guys. Please ask. Okay, if you don't ask doubts, I will consider that you have understood and I'll go ahead. I won't get to know that either, even if you have the doubts. Yes, Sanya, it is perfectly similar. It is almost similar as mitosis. Yes, it is almost similar as mitosis. Yes, Lakshmi. When chromatids separate, homologous chromosomes are together. Yes, Lakshmi, that is completely correct. When they separate, homologous chromosomes are together. मतलब कि एक मदर वाला और एक फादर वाला, मतलब एक जैसे वाले साथ में रहेंगे. Akash, you have missed that yesterday's class. That is why you have this question, that what is the difference beginning process of mitosis and meiosis. You have missed the class, बच्चा. ओके, फिर भी मैं बता देता हूं आकाश, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो माइटोसिस है, जो माइटोसिस पूरा इंटायर प्रोसेस और मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, याद रखना आकाश, ठीक है, आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, आर ऑलमोस्ट सिमिलर. नाउ द मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस में नहीं होता है. माइटोसिस यहीं तक होता है. माइटोसिस में सिर्फ 4 फेजेस में ही खत्म हो जाता है और वहां पर फिर साइटोकिनेसिस होके सेल्स का सेपरेशन होता है. बट मियोसिस में, अभी मियोसिस सेकेंड में अभी इसका और ज्यादा सेपरेशन होगा, और ज्यादा सेल डिवीजन होगा. दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मियोसिस. Divya saying the end result of meiosis is same as mitosis except the homologous chromosome apart. Yes, perfectly said Divya. That is completely correct. जो end result है माइटोसिस का और मियोसिस का, that is completely same. बट क्या होता है कि माइटोसिस में आपको सिर्फ 2 सेल्स मिल जाते हैं और वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं मिलते हैं. वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं मिलते हैं, ये याद रखिएगा. देयर यू डोंट गेट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, and here you get the homologous chromosome, the pair you get. Okay, Lakshmi Singh, so basically they come back to the stage before crossing. No Lakshmi, before crossing they were blue का same, red का same. If you remember, green वाले same थे और रेड वाले सेम थे. बट यहाँ पर अभी देख सकते हो आप, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अभी भी है, ये लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर देखिए, लुक एट द पिक्चर, क्रॉसिंग ओवर अभी भी है. क्रॉसिंग ओवर अब होने के बाद दे आर होमोलॉगस.
होमोलॉगस मतलब वही फादर का एक साथ, फादर और मदर वाले मिक्स है, एक साथ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर के क्रोमोसोम एक सेल में चले गए और मदर के क्रोमोसोम एक सेल में चले गए, ऐसा नहीं है। फादर और मदर के क्रोमोसोम साथ में है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम होमोलॉगस। इज दैट क्लियर लक्ष्मी? Let me know perfectly. Now we go back. Now we go ahead and now we will understand what is meiosis process 2. आप समझिएगा। एक बार क्विकली मैं एक बार फिर से एक मिनट 30 सेकंड्स के लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि meiosis process is completed through two stages, meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination, homologous chromosome pairs are formed. Recombination or crossing over occur between homologous chromosome, and thereafter those homologous chromosome non-sister chromatid और उन्हें कह सकते हैं are divided into two groups, and thus two haploid cells are formed. Okay, यहाँ पर दो cells बन रहे हैं, ठीक है? Two haploid cells are formed. यहाँ पर two haploid cells are formed. Okay, now in meiosis 2, इसको मैं बहुत इजीली बताने वाला हूं, ठीक है? इन meiosis 2 इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस ओनली, इट इज आल्सो जस्ट लाइक माइटोसिस, जैसा माइटोसिस था वैसा ही है ये भी। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ओके, this is also the similar only. Now, so what will happen here is, I'm just going to explain you this in one single picture. All the process I have already written here. Okay, just a second. Yeah, here we come. Now, in mitosis 2, the starting cells are the haploid cells made from the meiosis 1. ये जो दो सेल्स आए हमारे, जो दो डॉटर सेल्स आए, ये कहां से आए हैं? meiosis 1 से आए हैं। ओके, these two daughter cells have come from the meiosis 1. From meiosis 1, these two daughter cells have come from meiosis 1. So these two daughter cells have come from meiosis 1, right? Now in this stage, two haploid daughter cells are formed. पहले समझिए meiosis 1 में undergo division by separation of recombined sister chromatids. मतलब क्या होगा यहाँ पर? अब इनका क्या होगा? सेपरेशन होगा। मेटाफेज, देखो पहले ऐसे समझ लीजिए, पहले यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन सिस्टर आ गए, ये आ गए यहाँ पर, ठीक है? कंडेंस हुआ, ये क्रोमोसोम वापस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वापस पहुंच गए थे, वो कंडेंस होकर फिर से वो होमोलॉगस क्रोमैटिड में आ गए। क्रोमैटिड आपको पता है क्रोमैटिड क्या होता है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आपका ऐसा जो आपका स्पिंडल जैसा ये जो शेप बनता है, राइट? तो दिस इज वन क्रोमैटिड, दिस इज टू क्रोमैटिड, तो सिस्टर क्रोमैटिड, इसीलिए इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, राइट? वी कॉल देम सिस्टर क्रोमैटिड। तो वैसे यहाँ पर मेटाफेज 2 में क्या होगा? दे कम इन सेपरेशन। यहाँ पर अभी भी क्रॉसिंग ओवर सब वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। देखिए यहाँ पर दे कम एट द सेंटर, इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए दो के दोनों यहाँ पर, राइट? एनाफेज में व्हाट विल हैपन? दे स्टार्ट सेपरेटिंग विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स की वजह से सेपरेशन विथ स्पिंडल फाइबर्स की वजह से सेपरेशन होता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर सेपरेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये दो एक पोल की तरफ चले गए, पोल 1 की तरफ, और ये दूसरे पोल्स की तरफ आ गए, राइट? अपोजिट पोल्स में विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो मतलब स्पिंडल फाइबर्स काम है उनको सेपरेट में, मूवमेंट में हेल्प करना, उनके मूवमेंट में हेल्प करना। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल। टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल मतलब पोल्स, टू अपोजिट पोल्स। एंड लास्ट द टेलोफेज कम्स, न्यू फॉर्मिंग गैमेट्स आर हैप्लॉइड। अब देख सकते हो इस वाले से दो फिर से बन जाएंगे, तो यहाँ पर दो नए, यहाँ पर सेम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। इस वाले प्रोसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, एंड यहाँ पर वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो सेल बनेंगी और यहाँ पर दो सेल बनेंगी, and these are nothing but the four haploid cells. These are four haploid cells formed from basically अभी बताता हूँ, one diploid cell at the end. Okay, so if you get this here, I will quickly
dictate it one more time कि in this stage two haploid daughter cells haploid मतलब कि जिनके क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे 1 1 रहेंगे 23 पेयर्स में रहेंगे, ठीक है, 46 से 23 आ जाते हैं, इसमें 23 चले गए, इसमें 23, ऐसे समझ लीजिए पेयर्स में चले गए. नाउ two haploid daughter cells formed in meiosis 1 undergo separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. ठीक है. Process of gamete formation, production and spore formation occurs by meiosis. जो eggs बनते हैं, जो sperms बनते हैं, right? gamete जिसको बोलते हैं, eggs को क्या बोलते हैं? gamete बोलते हैं, gametes. इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्स को बोलते हैं गैमीट. तो यहाँ पर जो जर्म सेल्स बने, जर्मेट हो रहा है, ये क्या बनता है? किससे बना? मियोसिस प्रोसेस से बनता है. दिस ऑल इज फॉर्म मेड अप ऑफ मियोसिस प्रोसेस 2. यहाँ पर किससे बनता है? मियोसिस प्रोसेस 2 बनता है. इसमें भी क्या होता है? सेम होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर फिर से होता है. क्रॉसिंग, आई विल राइट हियर, क्रॉसिंग ओवर occurs again. Crossing over occurs again. Crossing over occurs again. फिर से होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. एंड देयर बाय यहां पर रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है. रिकॉम्बिनेशन, इसको क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन. एंड ड्यू टू दिस ऑल द 4 cells आर जेनेटिकली डिफरेंट. इसीलिए क्या होता है? जो चार के चार सेल्स बनी है, देखो यहाँ पर देख सकते हो, इस सेल को देखो, इस सेल को देखो, यहाँ पर एक जैसे हो गए, इस वाले में एक जैसे हो गए, यहाँ पर रिकम्बाइंड वाले आ गए, यहाँ पर भी रिकम्बाइंड और एक जैसा वाला है, और यहाँ पर भी एक जैसे वाले और रिकम्बाइंड है. तो ऑल द 4 cells आर डिफरेंट. कैन यू ऑल सी? all these 4 cells are different, and that is the reason why siblings, brothers and sisters at home are not same. They are same, they have similarities, but they are not identical. Same to same नहीं होते, because this is the reason कि यहाँ पर हर सेल में कोई रिकॉम्बिनेशन वाला है, कोई क्रॉसिंग ओवर वाला है, मिक्स्ड है. मतलब कहने को तो क्या है? मिक्स्ड है. And that is why they have the similarity, but they are not identical at all. They are not identical. And here we come to the end of this. Okay, here we come to the end of this. That starting से हमने क्या लिया था? हमने 2n लिया था, डिप्लॉयड सेल लिया था. हमने स्टार्टिंग में क्या लिया? डिप्लॉयड सेल. उससे बने 2 डॉटर सेल बने, 2 हैप्लॉयड सेल्स बने, 2 हैप्लॉयड सेल्स बने. मतलब कहने को तब इसमें 23 पेयर्स थे क्रोमोसोम के, 46 क्रोमोसोम थे. इसमें ये 46 किसमें हो गए? 23 पेयर्स इसमें आ गए, 23 पेयर्स इसमें आ गए. अब ये फर्दर डिवाइड हुए तो 2 और डॉटर सेल्स बनाए, राइट. एंड एट द एंड वी गॉट 4 हैप्लॉयड सेल्स. 4 हैप्लॉयड सेल्स. कहने का मतलब we got 4 haploid cells from 1 diploid cell. We got 4n, मतलब 4 haploid cells from 1 diploid cells, from one diploid cells, from 1 diploid cells. And here my meiosis process, meiosis 2 ends, completes, I would say. Meiosis 2 completes. Okay, now I can take the doubts. If you have any doubts, quickly let me know. We can take some doubts and then we end it. So the basically the chapter ends here with the help of this. एक example दिया हुआ है, activity दिया हुआ है, that you all can read it once, read that on your own. एक बार पढ़ सकते हो. Now I can take some doubts. If you have any doubt, let me know. I can clear that out right now. You can have pre-reading once, and I think this was all easier, almost same as what